Hello, students. In today's lecture, we will be discussing one of the important topic of production management. This topic may be important for the undergraduate as well as the postgraduate students of BBA, MBA, or BCom or MCom. Today, I will take up topic that is plant layout. First of all, we are supposed to understand that why we are trying to take up this topic and what the topic means. In the previous lecture, we have discussed about plant location, which means that when any manufacturing or service company is trying to take up their business, then they have to identify the selection of the site, selection of the land, that where they want to go for opening of their plant. The idea, the concept here is the location has been identified by the company. You are acting as a plant manager, and the location has been selected by you on the basis of the manufacturing of the product in which you are going to deal. Now, you are supposed to plan for your layout. And here the layout is not only of a one department, but layout of the plant. That means the whole company, whole manufacturing unit. Layout means the best use of the floor area available to us. That means where should be the plant house, where should be the storage, where should be the administrative building, the parking space, the canteen, everything has to be planned and properly placed so that the various activities of the manufacturing can run properly in a smooth manner. Layout basically means the optimum use of the space available to us. Like if we try to take the example of a machine or the whole plant which is going to operate, then what should be the opening gate? Where should be the exit gate? How many gates or door has to be there? Which plant has to be placed at what place? From where the raw material will be inserted or received in the plant? How it is going to move in the various machine, and how and where the output will be received. That means each and every item which is being used in the company, we have to plan accordingly. Like you can say the concept that is being taken in your house also, कि घर में क्या होता है कि अगर आपके घर में लाइट चली जाए, उसके बाद भी आपको मालूम है कौन सा सामान कहां पे रखा है, एंड इजिली यू आर एबल टू मूव जस्ट बाय योर सेंसेस. The basic idea means everybody is having limitation with respect to land. The people who have small piece of land, they go for constructing the story building if it is required, कि वो सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी पे जाते हैं. जिनके पास ज्यादा लैंड होती है, they can go for only a ground floor. That means in business houses also, layout depend upon number of factors. That what product that we are producing, whether the product is of heavy nature or light nature, how many hours the plant is going to operate, how many people are going to operate, what should be the quantity of storage that we are supposed to have, where the employee are going to exit, means everything. कि एक कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी जॉब हैं, हर एक के बारे में प्लानिंग करना. लेआउट मीन्स रख रखाव. दैट मीन्स प्लेसिंग ऑफ मटीरियल, प्लेसिंग ऑफ मशीन, प्लेसिंग ऑफ मैन पावर, movement of every material, manpower, storage, everything has to be there in the plant. And this I will try to take up by discussing with the help of some slides that we can say. Right? The plant layout. First of all, we try to see the concept that what actually the plant layout means.
Here you can see that what we have done, that what we mean, that what is the significance, the arrangement of machines, work area, the arrangement of machines, work area, material handling, equipment, transport, storing of different material, product, tools and fixture. मतलब इन सब चीजों का रख रखाव, अरेंजमेंट, कौन सी चीज कहां पे पाई जाएगी, कौन सी चीज कहां पे रखी जाएगी। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट समझ गए, इसका मतलब जैसे कि ट्रॉली, रोपवे, बिन, क्रेन्स, मतलब जो मटेरियल को हैवी नेचर का हो या लाइट नेचर का हो, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करता है विद इन द कंपनी इटसेल्फ। बेसिकली लेआउट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरली फ्लो ऑफ वर्क। मतलब अगर लेआउट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका फ्लो स्मूथ नहीं होगा, एंड फ्लो बढ़िया नहीं होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड द मोरल ऑफ द वर्कर इज ऑल्सो गोइंग टू come down. That means we are supposed to be very much conscious while we are preparing the layout, because the smooth flow of movement of material, movement of manpower, avoiding the accident, avoiding the industrial accident, bottleneck, everything can be done with the help of plant layout. It can be overcome. Here you can see the few definitions that we have taken कि प्लांट लेआउट मतलब सबका डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, कि अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। अब इसमें फैसिलिटीज क्या है? मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट विद इन द फैक्ट्री, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट इज टू डिजाइन द फिजिकल अरेंजमेंट, अगेन द अरेंजमेंट, कि जितनी भी चीजें कंपनी के अंदर हैं उनका फिजिकली डिजाइन करना। इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ स्पेस, कौन सी चीज कहां पे रखी जाएगी, मतलब कि हैवी नेचर का है या लाइट नेचर का है, उसी हिसाब से, या इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इस्तेमाल होता है, कम इस्तेमाल होता है, उसी के हिसाब से, या जितनी हमारे पास स्पेस है उसी के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे रखी जाएगी। प्लांट लेआउट इज बेसिकली द प्लानिंग द पाथ of each component of the product. मतलब simple as such, that what we are trying to say, that plant layout means the keeping of various items in the company itself. अब objectives क्या है कि हम plant layout क्यों करें, right? First of all, economies in handling of raw material, work in progress and finished good. That means if the layout is proper, economies will be there. That means the cost of handling the material, work in progress and finished good will be minimized. Reduce the quantum of work in progress. Unfinished work will be less. Effective and optimum utilization of the floor area. Floor area is, I suppose, is one of the important objective for plant layout, because what the layout has to be there, it is always very much dependent upon the available floor. Bottleneck, obstacles which are there in production, they have to be overcome. That means a system of control is going to prevail. The objective is to control the various activities. Accidents, the objective is to avoid industrial accidents. Objective is to increase the morale of the employee. Safety of the various amenities to the worker. वर्कर के लिए जितनी भी एमिनिटीज की उपलब्धि की गई है वो सब सिक्योर रहे, उनका इस्तेमाल कर पाए। एडिक्वेट स्टोरेज, स्टोरेज हमारे पास बढ़िया होगा तो ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा उसमें आ पाएगा। अगर वहां पर, जैसे आप लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीफो, फीफो, हीफो, या फिर आप बेकरी शॉप पे जाइए
और अगर आपको ब्रेड लेनी है तो व्हाट दे डू कि वो लोग जो पहले ब्रेड आई होगी उसको सबसे आगे रखेंगे और जो लेटेस्ट आई होगी उसको पीछे रखेंगे. दिस इज द वे ऑफ कीपिंग द ड्यूरेबल आइटम्स और बेकरी आइटम्स बिकॉज देयर लाइफ इज शॉर्ट, राइट. तो स्टोरेज एंड पैकिंग मतलब कि जो पहले हमको इस्तेमाल करना है वो हम सबसे आगे रखें और फिर उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरह के सीक्वेंसिंग करें डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑल्सो. बेटर क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन टू द कंज्यूमर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. फ्यूचर एक्सपेंशन हो पाए प्लांट, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं और प्लांट लेआउट बना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसा कम है, आगे बढ़ सकता है या बिजनेस हमारा बढ़ सकता है, तो फ्यूचर एक्सपेंशन का भी प्रोविजन हमको रखना चाहिए. दिस शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव and meeting the competitive cost itself. Now, what are the various factors which are going to affect the plant layout? पहला फैक्टर देखिए, policies of the management. Means certain times the management itself lay down the rules and regulation with respect to size, quality, employee facility, delivery schedule. तो जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसी के हिसाब से पहली बात तो काम करना होगा. तो दैट मीन्स सर्टेन टाइम द मैनेजमेंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट अस इन डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, so that has to be considered. लोकेशन हमारा कहां पर है कि एरिया, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, टोपोग्राफिकल, क्लाइमेट कंडीशन, इन सबको देखते हुए भी हम लेआउट को तय करते हैं कि अरेंजमेंट हमको उसमें क्या से क्या करना है. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मीन कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, दैट मीन द साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट. कि प्रोडक्ट कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, पतला है, मूवमेंट में कितनी जगह चाहिए होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका नेचर क्या है, उसका बेसिक फीचर्स क्या है, एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द लेआउट. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इफ द प्रोडक्शन इज मास, तो ऑटोमेटिकली वन बाय वन देयर इज नो स्टॉपेज, वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स द मशीन्स आर सपोज टू बी इंस्टॉल्ड परमानेंटली एंड द रॉ मटेरियल हैज टू बी मूविंग so that the employee can easily move and the raw material can also easily move on the belt. Availability of floor area, floor space, पहले ही मैंने कहा every cubic space available to us has to be optimum utilized if we are talking about the layout. Nature of manufacturing process, that we mean whether we are engaged in mass production, batch production or job shop. That means कि अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अपने आप में यूनिक है, then the arrangement has to be done as per that product. लेकिन अगर बहुत सारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट ऐसे बन रहे हैं जो आपस में आइडेंटिकल है, then the layout has to be different. Repair and maintenance is also one of the important factor which is going to decide that what should be the layout, right? Even इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, if you require, that we can add the availability of money, that we can say as capital. Availability of capital can also be one of the important factor. Capital available, one of the important factor which can be the deciding decision for making of the plant layout. Importance, why we have to, what is the need of plant layout? हम क्यों पढ़ें, हम क्यों जाने, why we are supposed to plan? First of all, the effective use of the area. एरिया बार बार देखिए आ रहा है, क्योंकि एरिया हमारे सामने हमेशा लिमिटेशन में होता है. तो जितना भी एरिया हमको अवेलेबल है उसको हम ऑप्टिमम यूज कर पाए. आप देखिए, किसी भी आप होटल में जाइए,
अच्छे होटल में जाइए, रूम बुक कराइए, आपको एक सिंगल रूम में आपको हर जरूरत का सामान मिलेगा। दैट मीन्स द प्लेसिंग, चेयर भी मिलेगी, टेबल भी मिलेगी, पैड भी मिलेगा, टीवी भी होगा, बेड भी होगा, साइड टेबल भी होगा, लाइट भी होगी, बैकलाइट भी होगी, वॉशरूम भी वहीं होगा, एवरीथिंग। दैट इज दे मेक द इफेक्टिव एंड द बेस्ट यूज ऑफ द फ्लोर एरिया अवेलेबल। डिले हमारा कम हो जाएगा अगर लेआउट हमारा प्रॉपर होगा, तो ऑटोमेटिकली मैन पावर, मशीन और मटेरियल को मूवमेंट में आसानी होगी। तो डिले अगर कुछ हो रहा है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जब एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और जब ये क्लियरली डिफाइंड है कौन सी चीज कहां पे रखी है, तो वेस्टेज एंड लॉसेस वो भी हमारा कम होगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अभी हमने बात किया, हैजर्ड्स दैट विल बी मिनिमाइज्ड। द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी देयर। मतलब जब हर चीज प्लान्ड होती है कि हम मटेरियल कहां से लाएंगे, मैन पावर कहां पे खड़ा होगा, मशीन कहां से मूव करेगी, तो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो ऑफ द गुड क्वालिटी। इट हेल्प to keep the investment in equipment at minimum level. That means the best use of each and every equipment will be there. PPC is possible. That means production planning and control. We have discussed in the previous lecture about the production planning and production control. The techniques of production planning and production control can easily be applicable. Bottleneck can be avoided. Utilization of production capabilities. That means अगर लेआउट हमारा बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड के अकॉर्डिंग अगर एक मशीन की क्षमता, द कैपेसिटी टू परफॉर्म फॉर 12 आवर्स है, तो हम उसको 12 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट अच्छा होने से एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। आप लोग विश्वास मानिए, हमेशा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये कहा जाता है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज ऑलवेज हायर। मतलब 20% कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड 80% कॉस्ट इज रिक्वायर्ड और इनकर्ड इन हैंडलिंग द आइटम while the manufacturing is being done। एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना, मूवमेंट करना, लोडिंग अनलोडिंग करना, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लेबर जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो अगर लेआउट प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिकली मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी, विच विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द टोटल और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुपरविजन भी हमारा अच्छा हो सकता है। जैसे आप देखिए एक क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर इज एबल टू सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास। कि डिजाइन ऐसा किया गया है कि टीचर सामने खड़ा होगा और उसको क्लास का हर एक बच्चा दिखाई पड़ेगा। दैट मीन्स सुपरविजन इज इजी। द सेम थिंग हैपन विद द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट ऑल्सो, इफ द प्लांट हैज बीन डिजाइन्ड ideally। Improved and optimum utilization of labor, which is always considered as the backbone, और लेबर कॉस्ट भी काफी हाई होती है। अगर लेआउट प्रॉपर है और हर चीजें अपनी जगह व्यवस्थित रखी हैं, तो आप लेबर का भी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, whatever work in which he or she is being engaged। This is also going to have the increase in the morale and avoidance of unnecessary costly changes can be avoided। तो इसलिए हमको प्लांट लेआउट बढ़िया तरीके से करना चाहिए। Advantages, the same thing itself we can say, it bring down the investment required in machine and equipment। मशीन और इक्विपमेंट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू प्रिवेल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेटर सुपरविजन, कहां पे गलती हो रही है जल्दी से जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन कैन बी देयर।
लेआउट प्रॉपर है तो एक्सपेंशन का भी उसमें प्रोविजन किया गया होगा। लेबर और मशीन का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मींस ऑप्टिमम यूज ऑफ लेबर एंड मशीन। ब्रेकडाउन becomes much easier by transferring work to अदर मशीन। अगर कभी किसी वजह से कोई मशीन या प्लांट हमारी रुक जाती है और लेआउट प्रॉपर है, तो लेआउट प्रॉपर होने की वजह से हम एक मशीन का काम दूसरी मशीन पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, जैसे हम लोग लेबर और मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे इक्विपमेंट और मशीन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेंटिव्स कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द गुड परफॉर्मेंस टू द एम्प्लॉय। क्राइटेरिया कि हम लोग लेआउट का डिजाइन बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें। आप ये देखिए कि लेआउट पहले क्या करना है। बेसिकली लेआउट हैज टू बी मेड फॉर वर्क सेंटर लोकेशन। ऑफिस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, कंप्यूटर फैसिलिटीज, टूल, इक्विपमेंट, स्टोरेज स्पेस, वॉशरूम, हर एक चीज को कंसीडर किया जाएगा लेआउट बनाते समय। और दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अभी आपको हमने बताया कि किसी भी यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 20% तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन 80% हैंडलिंग कॉस्ट है। तो दिस हैंडलिंग कॉस्ट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो मोर एफर्ट हैज टू बी टेकन कि हमारा जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड। लाइक देखे लिखा भी है इसमें, मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग लाइक बेल्ट। आपने देखा होगा एक बड़ा सा प्लांट है जिसमें बेल्ट लगी होती है और मटेरियल हमारा एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली बेल्ट के सहारे मूव करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा इन प्रोसेस आइटम है उसका लोडिंग और अनलोडिंग अवॉइड हो जाता है और वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंसर्ट होता है एक जगह से प्लांट में, और कई मशीन का काम होने के बाद अल्टीमेटली आउटपुट आपको दूसरे सेंटर पे मिल जाता है। वर्क इफेक्टिवनेस हैज टू बी देयर। तो मटेरियल हैंडलिंग और वर्क इफेक्टिव हो, कोई रुकावट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, स्मूथ फ्लो हो, दैट हैज टू बी द बेसिक क्राइटेरिया व्हाइल वी आर डिजाइनिंग द लेआउट। टाइप्स ऑफ लेआउट, कि हम अगर लेआउट बनाएं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, और दूसरी बात कितनी तरीके के लेआउट होते हैं। पहला लेआउट है प्रोसेस लेआउट। देखिए प्रोसेस मतलब होता है वी कैन से फंक्शनल लेआउट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कि जो प्रोसेस लाइक, प्रोसेस मीन्स लाइक कटिंग, पेंटिंग। अगर कटिंग एक प्रोसेस है तो उस डिपार्टमेंट में कटिंग करने के जितने आइटम होंगे आपको उस जगह मिलेंगे। डेंटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस, दैट मीन्स डेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए, पेंट करने के लिए जितने आइटम है आपको वहां पे मिलेंगे। जिसे आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में भी, किचन में नाइफ रखे होते हैं, तो नाइफ का जो स्टैंड आता है तो देखा होगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा रखा होता है। ये बेसिकली प्रोसेस लेआउट है कि पांचों नाइफ हमारे एक साथ में इस्तेमाल होने हैं, लेकिन उनको हमने ऐसे डिजाइन करके रखा हुआ है जो भी नाइफ हमको जरूरत है हम उसको उठाएं, काम करें और फिर वापस अपनी जगह पे ले आए। दैट मीन्स इस लेआउट में हमको जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, उनका क्या काम है उस हिसाब से हमको लेआउट बनाना पड़ेगा। लाइक दिस टाइप ऑफ लेआउट, द मशीन्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेशन। देखिए कि मशीन को हमको ऐसे अरेंज करना है कि मशीन का काम क्या है उसके हिसाब से। आप लोग ने ये कारपेंटर देखा होगा, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन टूल्स को वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से रखता है। घरों में स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स भी आप देखिए छोटे से बड़ा उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको रखना। दैट मीन जो मशीन या इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके हिसाब से जब लेआउट करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस लेआउट, राइट। एडवांटेजेस क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ मशीन नहीं होगा, कि अगर हमने
बात किया कि एक ए टाइप मशीन है, मतलब हमारे पास 5 मशीन है ABCD, तो फिर ए एक ही होगा, बी एक ही होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सुपरविजन बेटर है, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। अगर ब्रेकडाउन हुआ किसी में भी तो हम उस ब्रेकडाउन को इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हैंडल करते हैं, एंड बेटर कंट्रोल। लॉन्ग मटेरियल फ्लो लाइन एंड एक्सपेंसिव हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब ये कभी कभी, जैसे कि आप देखिए अपने स्कूल कॉलेज में, अगर फोटो स्टेट की मशीन सिर्फ एक जगह रखी है तो सारे डिपार्टमेंट्स आकर वहां पर फोटो कॉपी कराएंगे। आउटकम क्या होगा? देरी होगी, टाइम टेकिंग, विल गोइंग टू रेस्ट इन कॉस्ट ऑल्सो। तो इसलिए भी अगर जरूरत ज्यादा है फोटोकॉपी की तो आप हर डिपार्टमेंट में आप रख दीजिए, ऑटोमेटिकली योर टाइम एंड कॉस्ट विल बी रिड्यूस। तो ये डिसएडवांटेज है कि कभी कभी प्रोसेस की वजह से हमारा डिले और एक्सपेंसिवनेस बढ़ जाता है। प्रोडक्शन टाइम जो भी हमने मालूम आपको बताया वो बढ़ जाता है प्रोसेस लेआउट में। फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हमारे पास होंगे प्रोसेस लेआउट में जो बहुत समय से, या फिर उनकी यूटिलिटी हमेशा नहीं होगी। दे विल बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड बट दे हैव टू बी मेंटेन्ड। Specializations create monotony. Since work does not flow through definite lines, counting and scheduling is more tedious. ठीक है, कोई फिक्स लाइन नहीं है, कौन सा आइटम, कौन सा औजार, कौन सा इक्विपमेंट हमको कब इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली डेफिनेट लाइन काउंटिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ दीज इक्विपमेंट विल बी बिट डिफिकल्ट। दूसरा देखिए लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की जरूरत के अनुसार हम मटेरियल और मशीन और मैन पावर को अरेंज करें। मीन एक प्रोडक्ट को बनने के लिए 10 मशीन चाहिए और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 10। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड की सीक्वेंसिंग हम प्रॉपर करें कि हम फर्स्ट पे रॉ मटेरियल इंटर करेंगे और 10th पोजीशन पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में है हम उस प्रोडक्ट के हिसाब से जब लेआउट बनाते हैं कि भाई मान लीजिए एक ट्रक बन रहा है तो एक जगह हमारा इंजन बनेगा, दूसरी जगह बॉडी बनेगी, तीसरी जगह चेचिस बनेगी, फिर आपका डेंटिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, फिर इंस्पेक्शन हुआ और उसके बाद ट्रायल हुआ एंड देन द प्रोडक्ट इज देयर इन द मार्केट। अगर इस तरह से रखरखाव करेंगे इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोडक्ट लेआउट। In this type, only one type of product is being produced in that area. कि हम एक ही चीज, मतलब आप लक्स साबुन बना रहे हैं तो लक्स साबुन को बनाने में जितने भी इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल और मैन पावर की जरूरत है उनकी सीक्वेंसिंग आप उसी हिसाब से करेंगे, राइट। एडवांटेजेस, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट दोनों में रिवर्स हो जाता है। जो प्रोसेस लेआउट का हमारा डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा कुछ हद तक, और जो वहां पे एडवांटेज है वो कुछ हद तक यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाएगा। लोअर एडवांटेज क्या है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है क्योंकि एक से ज्यादा मटेरियल हो सकते हैं, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ मशीन कैन बी देयर, रिपीटेटिव जॉब्स, डुप्लीकेशन हो सकता है तो हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है, ये डिसएडवांटेज हो गया। लेस वर्क इन प्रोग्रेस, यूनिट कॉस्ट इज लेस, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इज पॉसिबल, सब कुछ फिक्स है। लेबर इज गोइंग टू स्पेशलाइज, create dull and repetitive jobs, poor skilled workers may not maintain equipment or quality of output, no flexibility, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज विद द फॉल इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर कभी डिमांड घट गई तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है हमारा, ये हमारा फिक्स फॉर्म में था, ये दिक्कत करेगा, राइट। सो दीज कैन बी द ड्रॉबैक्स। थर्ड लेआउट इज बेसिकली द फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट हम लोग ज्यादातर उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं विच आर बिग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स,
हेवी नेचर प्रोजेक्ट्स, उनमें हम लोग यहां पर बात करते हैं कि फिक्स्ड लेआउट is the least important in today's manufacturing industry. This type of layout is major component remain in fixed location. Other material parts, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड लोकेशन, अदर जो मटेरियल पार्ट, टूल्स एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, दे आर ब्रॉट इनटू दैट लोकेशन, फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं. इन्वेस्टमेंट इज वेरी स्मॉल, लेआउट इज फ्लेक्सिबल. एक तरह से मतलब आजकल बहुत ज्यादा हम लोग ये फिक्स्ड लेआउट वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं. एंड फोर्थली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज बीइंग करंटली यूज्ड, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड लेआउट. कंबाइंड लेआउट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट. मतलब एक ऐसा लेआउट जहां पर जरूरत पड़ने पर हम प्रोडक्ट लेआउट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम प्रोसेस लेआउट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. दोनों ही चीज इस्तेमाल हो रही है हमारी. मतलब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट लेआउट है, लेकिन जब आप किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे प्रोसेस लेआउट है. जैसे भी अभी हमने एग्जांपल लिया कि ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का, तो पहले मतलब इंजन बना, बॉडी बनी, चेचिस बना, असेंबलिंग हुआ, डेंटिंग हुआ, पेंटिंग हुआ. तो ये सारे अगर ऊपर से देखा जाए तो ये हमारा प्रोडक्ट लेआउट है और लास्ट में हमारा ट्रक बन जाता है. लेकिन पेंट, जहां पर पेंट बिल्डिंग में होगा, उस पेंट में सारे पेंट के सामान रखे होंगे. जहां पे डेंटिंग होगा वहां सारे डेंटिंग के सामान रखे होंगे. जहां पे इंजन रखा होगा या इंजन बन रहा होगा वहां इंजन बनने के लिए सारे सामान रखे होंगे. तो दैट इज अ प्रोसेस लेआउट. तो एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कि हम लोग टाटा का नाम ले या एनी अदर दैट यू कैन से, अशोक लेलैंड ऑल्सो, आप वहां पे देख लिए तो ओवरऑल आपको दिखेगा प्रोडक्ट लेआउट है. लेकिन जब आप अंदर जाके देखेंगे, द प्रोडक्ट लेआउट इज बीइंग हेल्प्ड विद द हेल्प ऑफ process layout only. So process, it's a combination of process and product layout. That means you get the advantage of both. These days pure product or pure layout are rare. Combination layout is possible where an item is being made in different types of size and types. And these are the advantages that we can say. Whenever number of items are produced in same sequence but none of the items are to be produced in bulk, then no item justifies for an individual and independent production line. मल्टीटास्किंग लीवरेज हो सकता है, एक एडवांटेज. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी, जब प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट एक साथ होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हमको आ सकती है समझने में उसको कि कहां से हम क्या करें. कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग. वर्कर्स अगर हमारा कमजोर है, नया है, तो उसको समझने में भी देरी हो सकती है. इन टोटलिटी वी कैन से दैट प्रोडक्ट और वी कैन से द प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट बोथ आर इंपॉर्टेंट. दोनों को ही जरूरत होती है आजकल के समय में. आप देखिए घर में भी आपके प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट सब दोनों ही अपनाए जाते हैं. मतलब खाना बनाने का सामान वो किचन में ही रखा होगा और किचन में भी वो सीक्वेंसिंग से रखा होगा कि जहां पर आपका बर्नर होगा उसी के ऊपर चिमनी होगी, उसी के पास हो सकता है विंडो भी हो. तो सीक्वेंसिंग हैज बीन डन, राइट. तो इन दिस वे वी कैन से द सेम, जो हाउस हमारा होता है घर, उससे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहीं नहीं होती है. तो द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी गेट फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर रिसाइडिंग, जब वहां पे चीजों को हम सीक्वेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली same pattern is being followed in every manufacturing company also, right? So in this way we come to the end of the plant layout. In the next lecture we will take up about the other topics of the production layout. Okay, thank you all of you.